আমাদের গাড়ি চলে এসেছে আর এবার আমরা যাব পেহেলগাম। এই যে আমাদের খাবার এসে গেছে। সেই যাচ্ছি তো যাচ্ছি, শেষ আর হচ্ছে না, এত বড় টানেল, মানে ঘন্টাখানেক ধরে যাচ্ছি। এইটা হলো মার্তান্ড সান টেম্পল। এটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল 8ম শতাব্দীতে, আর এইটা দেখতে পাচ্ছি এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। छठवां जो काल नंबर उसको प्राचीन भाषा लिखी हुई है 1400 साल पहले पाली भाषा उस पत्थर पर लिखे हुए आपको दिखाएंगे। जब भी उस जमाने में राजा आता था उस कॉलम पर बैठकर कोई भी न्याय करना होता तो उसके ऊपर बैठ के किया जाता। আমরা এখন আমাদের হোটেলে চলে এসেছি। অনেক জার্নির পর প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। ভিউটা একবার দেখো। এখন আছি উধমপুর স্টেশনে, কিন্তু একদম উপরে। এখান থেকে আমরা এখন গাড়ি আসবে, গাড়ি ধরে যাবো পেহেলগামে 1 নাইট স্টে করবো। এই যে আমাদের গাড়ি চলে এসেছে আর এবার আমরা যাবো পেহেলগাম। আমরা এখানে একটা হোটেলে ঢুকেছি কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য। এই যে আমাদের খাবার এসে গেছে। এখানে দিয়েছে দুটো লুচি, একটুখানি তরকারি দিয়েছে, ছোলার তরকারি, দই দিয়েছে আর চাটনি দিয়েছে। তো খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমাদের কিন্তু খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল এবং আবার আমরা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব। তার আগে তোমরা একবার এই ভিউটা দেখো। আর এই হোটেলটার নাম কিন্তু ভিকি বৈষ্ণু ধাবা। তোমরা কিন্তু এই রাস্তাতেই পড়বে, এটা তোমরা খেতে পারো, বেশ ভালোই খেতে। আর এখানে যদি এত সুন্দর ভিউ হয় তো তোমরা ভেবে দেখে নাও যে কাশ্মীরে গিয়ে কি সুন্দর ভিউটা হতে চলেছে। এবার আমরা ঢুকে পড়লাম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টানেলের মধ্যে, যেটা কিন্তু পুরো 10 কিলোমিটার কিন্তু লম্বা টানেল। সেই যাচ্ছি তো যাচ্ছি, শেষ আর হচ্ছে না, এত বড় টানেল, মানে ঘন্টাখানেক করে যাচ্ছি, শেষ একটুও হচ্ছে না এই টানেলটা। কখন শেষ হবে জানি না। আমরা আরো একটা টানেলে ঢুকে পড়লাম। তো এই যে আমার এখন গাড়িটা দাঁড় করালো, আর এই হোটেল থেকে আমাদের এখন একটা পোস্টপেড সিম কেনা হচ্ছে। তো আমি বলবো তোমরা আগে থেকে কিন্তু কিনে রাখবে। তো এই যে আমরা এখানে জিও সিম পেয়ে গেলাম, পোস্টপেড সিম। তো আমাদের কিন্তু প্ল্যানিং একটু চেঞ্জ আছে। আমি বলেছিলাম যে আমরা একেবারে পেহেলগাঁও যাব, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। আমরা এই রাস্তায় যেতে যেতে মার্তান্ড সান টেম্পল বলে একটা
মন্দির পড়বে, সেইটা দেখবো, দেখে আমরা হোটেল যাব। আমরা কিন্তু এখন যে ব্রিজটার উপর দিয়ে যাচ্ছি, এই ব্রিজটা কিন্তু হলো চেনাব নদীর ওপর অবস্থিত চেনাব ব্রিজ। এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই নদীটাই হলো কিন্তু চেনাব নদী। কি অপূর্ব সুন্দর দেখতে লাগছে এই চেনাব নদীর ভিউটা, একবার তোমরা দেখো। আমাদের ইনফরমেশন দিয়ে আমরা এখন যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, অর্থাৎ এই যে রাস্তাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম ন্যাশনাল হাইওয়ে, অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে 44 বা NH 44। এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আমাদের এখন গাড়ি যাচ্ছে। এখন কিন্তু মার্তান্ড সান টেম্পলে ঢোকার জন্য টিকিট কাটা হচ্ছে, আর টিকিট কিন্তু পার হেড 30 টাকা করে। কিন্তু চলে এলাম মার্তান্ড সান টেম্পলে। এইটা হলো মার্তান্ড সান টেম্পল। এটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল 8ম শতাব্দীতে, আর এইটা দেখতে পাচ্ছ এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু এখানকার শাসক সুলতান সিকান্দার শাহ মিরি কিন্তু এটাকে ধ্বংস করেছিলেন। सेवन 1400 साल पहले ये मंदिर बना। इसको जो बनाने वाले महाराजा विक्रमादित्य मुक्तापेड़ इस मंदिर को बनाए थे। इस मंदिर को महाराजा विक्रमादित्य ने दूसरा जो बना है वो उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल, गुजरात में मुंडेरा सन टेम्पल। 14 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बना। इसके राइट और लेफ्ट साइड, मेन मंदिर के राइट और लेफ्ट साइड पिलर जैसे लग रहे हैं दो, ये दो टेम्पल स्मॉल टेम्पल बने। इनके दो फेस, एक बैक साइड में दूसरा फ्रंट साइड में। उसके बाद और एक महाराजा रामदेव मंदिर का फर्स्ट सिटा बना, स्मॉल साइज की मूर्ति बनी है। मंदिर के राउंड में 184 देवी देवता की मूर्तियां बनी हुई है। उसके बाद सामने ये कुंड बना हुआ, जल कुंड। जब सूरज ग्रहण होता, सूर्य ग्रहण के बाद यहाँ पर यज्ञ करते थे। यज्ञ के बाद इस कुंड में जो पानी होता था, पानी को केसर, दूध, बहुत सारे पवित्र से मिलाकर मंदिर को वाश किया जाता था। सूर्य ग्रहण के बाद मंदिर को पवित्र करके फिर से यहाँ पूजा हो जाती थी। इस कुंड में पानी आता कहाँ से था? 1400 साल पहले शेषनाग का पानी जान के लेके आए थे, पहलगाम लिटिल रिवर का पानी। वो जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के दामन से एक वाटर कनाल आ रही थी। टेम्पल के बैक में कनाल पहुंचकर अंदर की जाने पानी कैसे आ रहा था? एक तो राइट साइड वाटर चलने लगी है, दूसरा वहाँ बैक साइड से चलने के जरिए दो साइड से पानी से इंटर होता है। पानी जब कुंड फुल होता था, यहाँ से पानी आउट होता था। अगर उसमें पानी गंदा होता, वो देखो वो छोटा सा कुंड वहाँ पर बना हुआ, उनका सिंपल फिल्ट्रेशन, वहाँ से पानी प्लस कुंड में आ गया, कचरा मिट्टी रहा, उसके नीचे सेटल होकर ऊपर से शुद्ध पानी फिल्टर होते हुए बड़े कुंड में पानी आ जाता है। उसके बाद ये दीवार बना, ये बना दो हिस्सों में। दीवार का जो बाहरी वाला साइड महाराजा विक्रमादित्य मुक्तापेड़ ने बनाई। दीवार का अंदर वाला साइड महाराजा रामदेव ने बनवाए थे। दीवार में गेट शेप 4 साइड, राइट साइड गेट शेप, लेफ्ट साइड गेट शेप, बैक साइड गेट शेप, और इंट्रिकेट ओनली वन जो फ्रंट साइड का बना। उसके बाद छोटे छोटे रूम जैसे बने हुए दीवार है। पूरे राउंड में 84 स्मॉल टेम्पल बने, छोटे छोटे 84 मंदिर। इन 84 टेम्पल में 81 टेम्पल ऐसे होते थे जिनमें मुख्तलिफ देवी देवता की मूर्तियां रखा करती थी। बाकी में 3 टेम्पल बचे जिनमें शिवलिंग रखी जाती है। राइट साइड दीवार का सेंटर शिवलिंग, लेफ्ट साइड सेंटर शिवलिंग, बैक साइड सेंटर शिवलिंग रखी जाती है। उसके बाद और एक काम इनमें होता टाइम का पता चलना। सुबह सूरज चढ़ने से डूबने तक हर एक टेम्पल में सिर्फ टू सिर्फ धूप आती थी। कोई भी ऐसा टेम्पल नहीं रहता था जिसमें शाम तक धूप ना आती हो। अगर किसी टेम्पल में फर्ज करो सुबह 6 बजे धूप आती थी, थोड़ी देर के बाद धूप थोड़ी डल जाती 6:05 और डल जाती 6:10 और जल्दी 6:15। ऐसे करते करते पूरे दिन का वो टाइम का पता करते थे। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक, यहाँ पर 3, बैक साइड में 2, टोटल 6 में से 5 पंचायतें बनी हुई। छठवां जो काल नंबर उसको प्राचीन भाषा लिखी हुई है। 1400 साल पहले पाली भाषा उस पत्थर पर लिखा आपको दिखाएंगे। जब भी उस जमाने में राजा आता था, उस कालम पर बैठकर कोई भी न्याय करना होता तो उसके ऊपर बैठ के किया जाता। यहाँ पर लोटस बना हो, जहाँ भी सूर्य मंदिर होगा ऐसी लोटस की निशानी वहाँ बनी हो। मंदिर सिमट के बगैर कैसे बनाते थे? आइए, फर्स्ट में होल बनाते थे, इसके ऊपर दूसरा पत्थर, उसमें ये लाख बनाते थे। ये पत्थर जब इसके ऊपर वो लाख से फिर शेड होता, लाख के शेड से मंदिर में जैसे राम मंदिर बना ना, लाख के शेड वैसे ये भी बना हुआ था। ये देखो सर, सेकंड सिस्टम से बना।
ये जय ये विजय की मूर्ति बनी है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड ब्रह्मा जी की मूर्ति, यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए सर डोर कैसे लगाया जाता है, नीचे होल बने ऊपर पत्थर में होल, इनमें डोर कैसे लगा, ऐसे रखते डोर के टॉप में लॉक रखते थे दोनों में, ऊपर होल फंसाने के लिए, नीचे भी दरवाजे में लॉक करके नीचे होल में फंसाना, दरवाजा ऐसे खोला और बंद किया। इंटरलॉक डोर चोरन वाले डोर होते हैं विदाउट कब्जे के। यहाँ से सीधा बढ़कर ये वाले टेम्पल में एंट्री होती है, यहाँ से इसका द्वार बना होता है। इसका टॉप और मेन टेम्पल का टॉप ट्रायंगल शेप सिर्फ एक किस्म की। यहाँ पर यमुना जी की मूर्ति बने, यमुना के नीचे यहाँ पर एक कछुआ बना, छोटा बना कछुआ। ये गर्भगृह बना, मेन मंदिर, यहाँ पूजा होती थी। कैसी होती थी, सुबह सूर्य उगते ही मंदिर के टॉप पे एक ऐसा यंत्र लगा होता, सूरज की रोशनी जब ऊपर यंत्र के ऊपर आते उसके किरणें अंदर रिफ्लेक्ट होकर आते थी, पूजा होती थी। पूरे दिन किरण यहाँ राख, इसके टॉप भी ट्रायंगल शेप। ये यहाँ भी बना वो डोर, इंटरलॉक डोर, ऊपर पत्थर में हो नीचे भी हो, इंटरलॉक डोर। इतने भारी पत्थर ऊपर तक चढ़ाते कैसे थे, ये देखो सर, ये समझो फर्स्ट स्टूल लगाया, इसके ऊपर सेकंड स्टूल लगाना मुश्किल होता था। फर्स्ट स्टूल लगाकर इसके साइड में जो जमीन डाउन हो जाती है उसको मिट्टी से फिलअप करते, इसके टॉप तक दूर तक वो पूरे एरिया में लेवल बना था। उस मिट्टी के ऊपर लकड़ी के गोल को टुकड़े रखकर उसके पत्थर करके रोल करके पत्थर चढ़ाया, दूसरा चढ़ाए, फिर से फिलिंग, ऐसे पत्थर फिलिंग अंदर बाहर करते करते जब तक पूरा मंदिर कंप्लीट हुआ। लास्ट में मिट्टी को बाहर निकालते गए, मंदिर तैयार हो। 37 ईयर पूरे मंदिर को 37 साल लगे बनाने में। उसके बाद ऊपर देखो आप, कोई भी ऐसा पत्थर है नहीं जो तराशा में, जिसमें कोई कार्विंग ये मूर्ति न बनी हुई। जितने भी देवी देवता है हर एक की मूर्ति दीवार पे बनी हुई है। তো আমরা এখন ফিরছি মার্তান্ড সান টেম্পল থেকে, দেখা হয়ে গেল আমাদের। আমরা এখন আমাদের হোটেলে চলে এসেছি। অনেক জার্নির পর প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। হোটেলটার নাম হলো গ্র্যান্ড আবদুল্লাহ আর আমাদের রুম নাম্বার হলো 104। তোমাদের দেখাচ্ছি সেটা। তো তোমরা এই ভিউটা একবার দেখো। এই যেখানে একটা বড় টিভি রয়েছে, এখানে জগ রাখা রয়েছে, এখানে পাখা আছে, অনেক লাইট করা আছে। আর এই বেডটা কিন্তু একদম হিট করার জন্য যন্ত্র রাখা আছে। এই যেটা হিটার রাখা আছে, সেলফোন রাখা আছে। এদিকে একটা আয়নার একটা আলমারিও করা রয়েছে। আর এই যেখানে সব বালিশ টালিশ সব রাখা আছে। এই যে, তো আজকে এখান থেকেই শেষ করছি। আর তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব আর একটা লাইক তোমরা করে দেবে।